ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی تو ملاقات کرواتے ہیں اپنی 27 جنوری کے پروگرام کی ونر سے. ان کا نام ہے ریحانہ شیری, لیکن ریحانہ جی خود نہیں آ پائیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے موٹر سائیکل کلیکٹ کرنے کے لیے. تو آپ سب لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں ہم بلاتے ہیں طیب رفیق صاحب کو. تالیاں. ارے بھیا مبارک ہو, مبارک ہو. ریحانہ جی خود نہیں آ پائیں, وہ کراچی میں ہے. وہ کراچی میں. آپ کا تعلق لاہور سے ہی ہے؟ جی. بھائی ہیں آپ؟ جی. تو آپ کو معلوم ہے وہ کلپ ہم نے کون سی فلم سے لیا؟ سالہ صاحب. سالہ صاحب سے لیا. تو موٹر سائیکل آپ پہنچائیں گے وہاں تک؟ یہ میرے پاس ہی رہے گی. اچھا آپ کے پاس ہی رہے گی. بہت ساری تالیاں بجائیے میرے بھائی کے لیے. آپ کے لیے یہ چابی لیجیے جی, تو وہاں تک لے جائیے. تالیاں. یہاں بتاتا چلوں 28 جنوری کے پروگرام کے ونر کا نام, ان کا نام ہے شمس الدین اور ان کا تعلق ہے فیصلہ آباد سے, ہاسمکھ شہر. بہت ساری تالیاں بجائیے شمسو بھائی کے لیے. تو کتنی دیر میں پہنچ رہی ہے لیلا یہاں پہ؟ لیلا تو میرے ساتھ اب نہیں رہی. اچھا سی ڈی تک کی محدود تھی وہ. بس وہ تو یہ خیال کیسے آیا؟ ٹوٹل کوئنسیڈنس. اچھا ہم لوگ ایک پاکستان کا برانڈ ہے, کیونکہ میں پروڈکشن ہاؤس میں دبئی میں ہوتا تھا. اچھا تو پاکستان کا ایک برانڈ ہے, ہم نے ان کو شوٹ کیا تھا وہاں ان کا ایڈ, اور اس کے کمرشل کے لیے ہم لوگ جب بینکاک گئے فار وہ جو پوسٹ کے لیے, تو وہاں ایک ٹیون ملی. وہ ٹیون اتنی زبردست سی لگی جو کہ لیلا گانے کی جو بیس لائن ہے, تو وہ وہاں سے ہم لوگوں نے پھر وہ لے کر وہاں واپس آئے, اور بیٹھے بیٹھے ایک دم آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ لیٹس, کیونکہ دبئی سے لانچ کر رہے تھے, اینڈ حیات شی آلسو یوز ٹو کم ٹو دیٹ اسٹوڈیو ویئر وی ور ریکارڈنگ. تو اس وقت تک البم کا بھی کوئی سین نہیں تھا. یہ گانا بنا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے البم ایسے فل کر کے اور البم پھینک دی جسٹ فار دس سانگ. لیلا کی بات کر رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ لیلا کے کوئی ذرا دھن تو سنائیے میرے بھائیوں کو. اور ڈیفینیٹلی یہاں جتنے بھی مہمان میرے آئے ہوئے ہیں ان کو وہ گانا ریوائیو ہو جائے گا ذہن میں دوبارہ سے. تو ہے منزل میں راہی, تو ہی دل پہ چھائی, صدیوں سے میرے من میں ہے تو سمائی, جینے کا بہانہ ہے تو لیلا لیلا بالکل ایسے اگلے شو پہ آپ ساتھ جائیں گے میرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی خدمت میں میرا ڈی جے ایک گانا پیش کریں گے جو کہ بیسیکلی ہمارے قوم کی آواز ہے. اجازت ہے سرکار؟ ہر کام پہ کوئی مسہیپ ہوا رے, کوئی لٹا کوئی کڈنیپ ہوا رے. بس کر دے بس کر دے بس کر دے بس کر دے, گنڈا کر دی بس کر دے بس کر دے بس کر دے. راہ چلتے ہی کوئی کبھی ٹریپ ہوا رے, کوئی لٹا کوئی کڈنیپ ہوا رے. ہر کام پہ کوئی مسہیپ ہوا رے, کوئی لٹا کوئی کڈنیپ ہوا رے.
किडनैप हुआ रे। यही आजादी तो ली जाती, कभी कोई नहीं देता। एक्टिंग करने का कुछ शौक आया दिल में? नहीं, कभी किसी ने बुलाया ही नहीं। मेरे नाम ने मुझे ज्यादा शोहरत दी है। जी करदा भाई जी करदा मैं रच के खावा, जी करदा हर बारी ओ हर बारी हर बारी ओ हर बारी कलेजा जाता कलेजा जाता सड़। होया लंबिया जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुक्की ना उठीक वे। होया प्यार 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 खोया दिल दा करार, मेरी अखियां चो मुक्की ना उठीक वे। मेरी अखियां चो मुक्की ना उठीक वे, मेरी अखियां चो मुक्की ना उठीक वे। होया लंबिया जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे। दूर तेरे कोलों रह नहीं सकदा, गले मिलन दिया बातां दिन नहीं लंघदे कलिया मेरे, डंग दिया ने मैनू रातां लंबिया जुदाई दिया रातां, किथे गईया ओ मुलाकातां, तेरी ही सूरत बन गई चार सू, तेरे मिलन की हर घड़ी जुस्तजू। जिथे गई तेरी हंसी मैनू छेड़ दी उदासी, मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे। होया प्यार 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 होया दिल दा करार, मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे। मुज़ाकिराती टीम आप सबको खुशामदीद कहती है। थैंक यू वेरी मच शाह जमान और जवाद साहब, इतने खूबसूरत गाने के साथ आपने इंट्रो दिया। बहुत सारी तालियां मेरे भाइयों के लिए। भारत में आम आदमी पार्टी के जो रहनुमा हैं और दिल्ली के जो वजीर आला हैं जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने आते ही भारतीय सियासत में एक भूचाल बर्पा कर दिया है। उन्होंने जैसे ही चार्ज संभाला है एज वजीर आला, उन्होंने बिजली लोगों के लिए सस्ती कर दी है। उन्होंने वहां दिल्ली के रहने वाले लाखों लोगों के लिए पीने का और घर के इस्तेमाल के लिए जो साफ पानी है वो मुहैया कर दिया है, और भी उनके रफाई एजेंडे जो हैं वो भी जारी हैं। ये होता है वजीर आला। सर उधर पानी देता, साडा पानी ढक लिया उन्होंने। मैं कहना बयान मेरा हल्का बदलो, मेरा वोट बदलो। मैं होगी कचरीवाल की साडा है दिल्ली का, मेरे हल्के में पाओ। मेरे हल्के में जरा पानी है, अंदर गैस होती है, मैं नहाता ही नहीं। 1 साल हो गया मैं नहाता ही नहीं। सही गल है, चाचे के घर में पानी बिल्कुल नहीं आता। इन्होंने नहाना हो ना तो छप्पड़ पे जाते हैं। अरे माफ कीजिएगा, चाचा छप्पड़ में नहीं नहाता। बरसात जब होती है तो जो परनालों से पानी आता है ना, वहां जाके परनाला बात करता है। अरे नहीं भाई, ये तो बरसात में भी खुश्क और बंजर रहता है, इसीलिए तो चाचे थरकोल के कोयले से बिजली बनाने की तैयारी हो रही है। और यार मैं आगे कहना कि अगर दिल्ली में बिजली सस्ती हो सकती है, पैपटगिरी की है, अगर दिल्ली में बिजली सस्ती हो सकती पिया जी, तो लाहौर च क्यों नहीं? केजरीवाल साहब अगर बिजली अपने मुल्क नूं दे सकते हैं तो साडे खादमे आला साहब बिजली क्यों नहीं देते? वैसे नमान भाई, ये जो केजरीवाल साहब बात कर मियां ड्योले पसंद क्यों नहीं गया? क्यों उठ के टुर पैना ऊपरे मुंह वाले? अजी मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अगर केजरीवाल साहब 5 मरले के महल में रह सकते हैं, मैं तो उसको महल ही कहूंगा 5 मरले को, तो हमारे सियासतदान ये लूट मार कर करके 8-8 कनाल के घरों में क्यों रहते हैं? 8 कनाल क्यों करते हैं? अजय गरीब आवाम के पैसे से कब तक गुलछर्रे उड़ाते रहेंगे? अरे मैंने तो सुना है ये केजरीवाल मियां गरीबों के टैक्सों से कमाई गई रकम से
अपने प्रोटोकॉल पर सर्व करना भी शदीद बुरा समझते हैं। बिल्कुल, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज करूं कि उसके प्रोटोकॉल का बजट आपको मालूम है कितना है? क्या है जी? 0। अरे नुमान भाई, हमें तो इन हुक्मरानों के प्रोटोकॉल ने ही बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने भारत के कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस का नाम लेकर कहा है कि ये सारे के सारे करप्ट हैं, और उसने कहा है कि हम भारत को करप्शन से पाक कर देंगे। और मजे की बात यह है कि हम भी यही कह रहे हैं पिछले 65 साल से, और जमात इस्लामी तो बाकायदा नारा लगाती है कि हम इस मुल्क को करप्शन से पाक कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जमात इस्लामी के एक अहम रहनुमा। आप सब लोगों की तालियों में हम वेलकम कहते हैं जनाब फरीद प्राचा साहब को। और उनके साथ अभी आपने सुना शाह जमान साहब को, जवाद साहब को, तो वो भी स्टूडियोज में मौजूद हैं। राजा साहब, वेलकम टू मुज़ाकरात। इनके साथ क्या करेंगे? मुज़ाकरात करेंगे या ऑपरेशन करेंगे? ये बेहतर मुज़ाकरात कर सकते हैं, है ना? हंसते खेलते ही मुज़ाकरात हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। पर हंस खेल में मेरे ख्याल में काम बेहतर हो जाता है। कौम को जरा जरूरत है रिलैक्स होने की। सर मुज़ाकरात करना, ऑपरेशन न करना, वरना कितने ही ऑपरेशन करने पैने ने तो। अजी चाचे के कम से कम 460 ऑपरेशन होने वाले हैं। तो खोल के जोड़ना पैना पूरा। अजी हवा से खमसा की 5 जो बीमारियां हैं उसके ऑपरेशन भी तो होंगे। ये वाहद बंदा जिदे अंदरों गुर्दा दौड़ ला गया जी हाँ, इनका पित्ता बदलना पड़ेगा, कान बदलने पड़ेंगे, आंख बदलनी पड़ेगी, नाक बदलनी पड़ेगी, मुंह बदलना पड़ेगा, होंठ बदलने पड़ेंगे। यार तू चाचा ही बदल रहा है। मामूली सा ऑपरेशन है, दिमाग खोलकर दिमाग निकालकर किसी चीज की USB लगानी पड़ेगी। अजी दिमाग होगा तो निकलेगा ना। यार मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। एक दफा डॉक्टर के पास गया, कहने लगा मैं प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, कितने पैसे? उन्होंने कहा 40,000 रुपये लगेगा। कहने लगा अगर मैं प्लास्टिक अपनी ले आऊं तो? क्या उस मुज़ाकरात में हमें ले जाना पसंद करेंगे? नहीं। ये देखे ना, अमानुल्लाह साहब को पता है कि वहाँ क्या होना है, इसलिए उन्होंने बड़े जल्दी ना कर दी है। तो प्राचा साहब, आपसे पहले भी हमारे एक मेहमान आए, वो उनका ताल्लुक भी जमात इस्लामी से था, बलोच साहब का, लियाकत बलोच साहब का। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि बहुत रेटिंग आई उस प्रोग्राम की, TRP रेटिंग टॉप पे थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या मतलब कि जमात इस्लामी के जब लोग आते हैं स्क्रीन के ऊपर तो रेटिंग तो इतनी टॉप की आती है, तो सीटें उतनी टॉप की क्यों नहीं मिलती हैं? मेरे ख्याल कोई कौम का भी इम्तिहान हो जाता है ना, कि अगर लोग अच्छे हैं, दयानतदार हैं, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, पढ़े लिखे हैं, दीन को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं तो अपना एक रोल अदा करते हैं, कोई कहीं उनके साथ कोई मामूली सी बात भी वाबस्ता नहीं है। कराची में डिलीवर करके दिखा चुके हैं नेमतुल्लाह खान और इसी तरह से अब्दुस्तार अफगानी। तो बहरहाल हम इल्जाम नहीं देते, हम समझते हैं कि चले किसी वक्त कौम की समझ में आ जाएगी, हमारी बात भी समझ आ जाएगी। अच्छा, आज नहीं आई तो ऐसा तो नहीं कि 85% जो पब्लिक है वो करप्शन करना चाहती है? अब मैं ये समझते हैं कि ये लोगों पे हम इल्जाम नहीं रखते, लेकिन मुआशरे की छत होती है हुकूमत है, छत जितनी गंदी होगी पानी नीचे उतना ही गंदा आएगा। शाह जमान जी, जवाद साहब, ये क्या सिंगिंग पार्टनर्स हैं दोनों या कोलेशन सिंगर्स हैं, क्या है? बैंड है जी। आज मुझे लगता है कि इनका म्यूजिक ग्रुप जो है या तो हम ख्याल ग्रुप है या फिर गाने वालों में कोई फॉरवर्ड ग्रुप है। और नहीं भाई जी, इन्हों का O पॉजिटिव ग्रुप है। अरे नहीं भाई, B नेगेटिव है। गाता तो मैं था। अच्छा जी, गाता तो मैं था। मेरी जोड़ी जो थी ना स्टैब्लिश, वो कायम अली शाह साहब के साथ थी। ये क्यों होता है कि जब बैंड रिकग्नाइज्ड हो जाता है, उसको फेम मिल जाता है, पैसे एक्चुअली आने शुरू जाते हैं तो स्प्लिट हो जाते हैं, ये क्या वजह है? थोड़ी सी नियतों में खलल है आप लोगों की? नहीं, हमारी नहीं, आप कहें। थोड़ा सा मैं वजाहत करता हूँ। नॉर्मली देखते ऐसे ही हैं, बाकी जितने भी बैंड्स हमने देखे हैं जब फेम पे जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट वो सीन हुआ। हमारा बैंड बना है गाने से, उडीका से, और मजे की बात कि जब वो गाना हिट हो गया तो हमारा बैंड और मजबूत हो गया।
सो तब से ऑलमोस्ट 7-8 साल से अब तक वो बैंड हमारा इसी तरह से ही है यूनिटी। करो गाणियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ठीक तो नहीं पब्लिक लड़वा देती है। पब्लिक जो है ना, अगर कोई बैंड सुपरस्टार बन जाता है, मशहूर हो जाता, पॉपुलर हो जाता, तो लोग लड़वा देते भाई तुसी ना हो तो बैंड बेकार है। तो कला बंदा अपनी टिंड वेख रहा मैं ये वाहिद शो है लिटरली कि आने से पहले मैं सोच रहा था बॉस जाऊं कि ना जाऊं। अच्छा ये तो मेरे भाई लोग, ये तो खैर अल्टीमेट लोग हैं। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਆ ਸਾਬਣ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਈਜ਼ੀ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पढ़े लिखे लोग ना भी अलहदा होते हैं। थोड़ी ये जाहिल लोग हैं। आपने मैट्रिक कहाँ से की? मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया था मगर भूल गया हूँ। ठीक हुआ पुरानी गल करते पढ़े लिखे लोग। 3000 साल पहले बड़े सीर में ये राइज था। अभी 3000 साल पहले कौन जिंदा कौन मरता? मैं कहता हूँ आप लोग जो है ना लिटरली आप लोग इतना अजीम काम कर रहे हो। जो डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है हमारे मुल्क में, आप लोगों का एक और 2-3 प्रोग्राम्स भी चलते हैं टीवी पे जिससे लोग हंसते हैं। हाँ, फनकार आदमी ने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और एडवांस ने मोटरसाइकिल नहीं हेलमेट पाया वे डॉक्टर फरीद पराचर साहब, शाहजमान, जवाद साहब, तीनों मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हमारी मजबूरी लेनी पड़ती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं डीजे। मुद्दतों से यही आलम, न तवक्को न उम्मीद, न हुई मौसम सरमा में कहीं गैस की दीद। गोश्त बकरे का हुआ अब के पुराना किस्सा, एक अरसे से कोई फल नहीं पाया मैं खरीद। वॉक करते हैं इकट्ठे जो सुबह पार्कों में, लाइन लगते ही CNG की वो हो जाए बदीद। डॉक्टरों की कई किस्में होती हैं ना जी। होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, और उसके बाद एक डंगर डॉक्टर भी होता है। तो इलाज भी हो जाएगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। पराचर साहब डॉक्टर की डिग्री है, PhD की हुई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी डॉक्टर। पिछले दिनों में हिसाब लाया पाकिस्तान 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ अरे भाई मियां साहब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ये एलोपैथिक होते होते बचे। PhD की डिग्री है माशाल्लाह आपके पास। तो कायम अली शाह साहब भी डॉक्टर हैं, मियां साहब भी डॉक्टर हैं। तो ये आपसे पहले के डॉक्टर हैं या बाद के डॉक्टर हैं, और ये किस चीज के डॉक्टर हैं? इससे पहले आपको याद होगा कि रहमान मलिक साहब भी डॉक्टर थे। सुभान अल्लाह। तो आप अंदाजा लगा लें। मरीज का ऑपरेशन करना कहते सारे मोबाइल सर्विस बंद कर दो। अगर डॉक्टरों की कई किस्में होती हैं ना जी। होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, और उसके बाद एक डंगर डॉक्टर भी होता है। तो इलाज भी हो जाएगा। जमात इस्लामी में वाकई ही बड़े खुफिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठाए हुए हैं। नून लीग की हुकूमत है कि जब नून लीग की हुकूमत जाएगी तो उनके कच्चे चट्टे सामने लाए जाएंगे। मतलब ये चीजें तो कोई ऐसी खुफिया नहीं है। हुकूमतों की हर चीज बड़ी वाज़ेह है। जो कुछ चीजें होती है वो तो बड़ी खुल के लोगों के सामने आती है। लेकिन कोई आदादो शुमार है जिसकी ठंडी हवा गरीब की झोंपड़ी तक नहीं जाती, वो कोई आदादो शुमार नहीं है। लोग उसको कभी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यार मजे की बात तो देखो, भाईजान दरमियान में तशरीफ रख रहे हैं। मेरी जही सेहत का बंदा हो तो लोग पूछते हैं की हाल तेरा, और ठीक है तो कमजोर आदमी ना यहो जहा बंदे में की हाल है भाई, ठीक है। तो किससे इंस्पायर हुए हैं शाहजमान आप और जवाद साहब आप? अगर मुझसे पूछे तो डेफिनेटली जितने भी नाम हैं जो हमसे पहले से हम सुनते, वी ग्रू अप लिसनिंग टू देम। किशोर कुमार है, नुसरत फतेह अली है, अरे बाबा, और बेताशा वेस्ट के भी बैंड्स हैं। एक काफी सा एक फ्यूजन सा दिमाग में चल रहा होता था जो कि पसंद थे लोग। बाकी बस पॉप इंडस्ट्री
जो हम लोगों ने हमारी तरफ जो पाकिस्तान में एक वो भी फ्लरिश कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो भी डेड हो गई है। नहीं तो सर आपका गाने की तरफ ख्याल कैसे है? माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੈਸਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। बचाओ ਲੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੀਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। जानबूझ के इनको कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप लोग भी खुले बात ਉਹਨਾਂ करें। ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੁੱਲੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕਦੇ ਆ। खुल के जैसी कुछ सुने से मैं नहीं आएंगे ब्याह आएंगे। वो तो खुल रहे हैं, कहीं ये ना हो चाचा खुल जाए यहाँ मोबाइल बिखर जाए। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਂ। राजू साहब, कौम को जो मसाइल दरपेश हैं, क्या आप समझते हैं ये गवर्नमेंट इतनी अहल है कि उनका खात्मा कर सके? देखिए, मसाइल तो इतने ज्यादा हैं, अगर आप आम आदमी से पता करेंगे तो वो आपको जो मसाइल की लिस्ट ही बता देगा, जो उसकी अपने जाती हैं, उसके इर्द गिर्द हैं, मुआशरे में हैं, कौम में हैं। तो वो इतनी ज्यादा फहरिस्त है कि शायद उसका पूरा दिन फहरिस्त गिनवाते ही गुजर जाए। हुकूमतें जो हैं वो इस मसले के लिए आती ही नहीं है कि मसाइल हल करें। तो क्यों आती हैं? वो आती हैं स्टेटस एंजॉय करने के लिए, करप्शनों के लिए, और इसमें बड़े अच्छी बात। कौम तो बेचारी मजलिस शाम गरीबा ही मनाने के लिए है। उसकी किस्मत के अंदर यही है कि जी मतलब वो हर दफा आती है तो पिछलों को याद कर लेती है, रोने रो लेती है। महंगाइयां, वही प्याज टमाटर, उनके ही मसाइल, बिजली गैस पानी, कोई चीज तो है नहीं, और हुकूमत है फिर भी। तो जब हुकूमत है और कुछ भी नहीं है तो फिर कौम ने रोना ही है। सही कहा आप। आपकी बात से मुझे एक शेर याद आ गया। अब जो फेर कितने सही नहीं तो क्या है? वाह 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 दूसरा नहीं सुना। और पहला मिसरा तो जेड़ा सी ना पता नहीं सी की क्या है जनाब के अवाम की जो आपने बात की है कि तेरी किस्मत में कहाँ हसीनों की जुल्फे मामदीना, तू चूहे की पूछल पकड़ मामदी। जी ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त हुआ है आज के वीडियो क्लिप का। चलिए चल के आज का वीडियो क्लिप देखते हैं। लकड़ी की बेजान छड़ी इंसान का सहारा बन सकती है, लेकिन इंसान इंसान के लिए कुछ नहीं करता। जी हाँ अंकल, लेकिन आप तो हम दोनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ना। ज्यादा शौक मत बनो, शुक्र करो उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है, वरना क्या होता? अगर वो तुम्हें ना पसंद करते तो मैं उनके फैसले के सामने कुछ ना बोलता। मुझको न देखो, बढ़ती है बेदारी। मेरा दिल है एक खिलौना और तेरा प्यार है चाबी। ये वीडियो क्लिप जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म का नाम बताइए। फटाफट अपने फोन उठाइए और एसएमएस कर दीजिए हमें जवाब। एसएमएस करने का तरीका सामने स्क्रीन पर चल रहा है। आप दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी इसका जवाब भेज सकते हैं। जी डीजे मारिया बुलाया कई बार वे, कदी सुन साडे दिल दी पुकार वे, फिर होई जेड़ी साडे नाल सजना, तेरे वादे ते जो कीता एतबार वे, कोई एड साडे तक नहीं अपड़ी, एवें मुफ्त च वधे है उधार वे। कोई और वाकया जिसमें सचमुच अगवा हो रही हो, आपने फिर शूटिंग ही समझी हो। बड़ी हसरत वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फरीद पराचा साहब के साथ शाहजमान और जवाद के साथ बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। शाहजमान, आप और जवाद, किसी लीडर को आप ऐसा समझते हैं जिसकी तरफ आप थोड़े से झुकाव हो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, और आप समझते हो कि यहाँ व्हेन दे विल कम इन गवर्नमेंट, यस अ पॉजिटिव चेंज विल कम फॉर द यूथ एज वेल? अनडाउटेडली इमरान खान। अच्छा जवाद, आपका भी सेम न्यूज। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? वी वांट चेंज ब्रदर, वी वांट चेंज।
We want change from the system, this Do you existing think so? system. जब जमात इस्लामी आ जाएगी तो आपके बाजे छीन के ले जाएगी? Most probably, yes. आप जाट बरादरी से हैं, इब्रार भी जाट बरादरी से हैं। क्या जाटों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है? छोड़ी नहीं है, काश्तकारी स्टिल चल रही है। नहीं मुसीकी च ऐसी केड़ी चीज है ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ। कहते ने जब बसंत का सीजन आया करता था, मतलब सीजन से बसंत का जब मौसम आता था और कटाइयों का सीजन होता था, नहीं पंजाबी जैसी समझ लेने जज सारे जो थे वो अपना वो ढोल भी बजाते थे और अपना खुशियां मनाते थे ना। तो वो इसलिए देखिए एक आर्ट है, जो म्यूजिक है प्रॉपरली तो एक आर्ट है। जट्टा ने असी वेखिया बचपन पग्गा मनिया होंदियां सन, बहुता नील दिता हुंदा सी, कईयां जट्टां दी चांदी कख नहीं हुंदी, इत्थे पत्थर दा डेला हुंदा सी, ओह कढ के पिल गोली खेड लैनी, जित जुत के फिर उत्थे रख लेना, कचहरी जाके एवं कख नाल फिर देना। की हाल है वकील साहब नहीं आए कितने? उन्होंने कहना जट साहब कचहरी जाना, ठहर जा मुंडा अख नाल खेडन गया है। अरे ये जो जाट होते हैं ना, जी हाँ, ये बहुत बहादुर होते हैं। ये अंग्रेजों की फौज में इनको खसूसी प्रोटोकॉल होता था, लेकिन अंग्रेजों को इस खित्ते से भगाया भी जाटों ने ही था। हाँ जट बड़े माशाल्लाह अथरे बड़े होंगे ने, लेकिन भुखे होने तो लुटन लग पे, रजे होने तो कुटन लग पे। अच्छा पराठा साहब, जान के मान पाऊं तो एक लाइटर मूड का सवाल अर्ज करना चाह रहा हूँ। जनाब आपसे लियाकत बलोच साहब हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे मुज़ाकरात में, तो उन्होंने फरमाया था कि उन्होंने अपने लड़कपन में जो फिल्में देखी उसमें उनको मोहम्मद अली साहब बहुत पसंद थे। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा गुजरा आपके लड़कपन में, कोई फिल्म में, कोई म्यूजिक, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस आपको पसंद हो? भाई लड़कपन में तो बांकपन होता ही है। ये ठीक है, यानी एक वक्त के अंदर आदमी सारे ही करता है, लेकिन मेरा साथ मामला ये रहा कि वो किताबें पढ़ने का मुझे शौक हो गया, और वो जो शेर है कि आरज़ुएं शबिस्तानों में ले जाती थी मुझको और मैं कुतुब खानों में और आंख पे सर धुनता रहा। तो ये रहा, लेकिन बहरहाल एक यानी 12वीं जमात तक कुछ फिल्में देखी हैं। अच्छा कौन कौन सी देखी है? कोई आखिरी फिल्म तो मुझे नाम भी याद नहीं है सर। आखिरी फिल्म कौन सी देखी? इंसानियत। कौन था सर उसमें? कौन था उसमें? भी मेरे ख्याल मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब ये आखिरी फिल्म वही थी। सर कभी सिनेमा की लाइन चला के टिकट भी कड्डी उतो? नहीं कोई ऐसा फिल्म देखने की में जाते थे? ये लाइन में नहीं लगते थे, जैसे ऐसे सबको कर दे, सबसे पहले खिड़की में पहुंच जाते। सर कॉलेज का दौर कैसा गुजरा? दौरे तालिब इल्मी के अंदर पहली मेरी गिरफ्तारी जो है वो 11वीं जमात में था, तो तब हुई है। तो मतलब अयूब खान के खिलाफ तहरीक थी। अच्छा तो इसके अलावा ये है कि मुबासों में, तकरीरी मुकाबलों में हिस्से, फिर इसी तरह से बैडमिंटन वगैरह का भी मुझे शौक था कुछ उसमें से। तो मतलब ये है ना कि जी एक्टिव रही है। कोई आपका ऐसा कॉलेज लाइफ का वाकया जो छुपाए न छुपा हो? ये अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं सदर था, वैसे तो बेशुमार ही वाकयात हैं, तो वहाँ आपसे जरा मुतल्लक यानी आप लोगों से, तो एक दफा हम यूनिवर्सिटी की वैन पे जा रहे थे वहादत रोड की तरफ, तो हमारे साथी ने कहा कि ओए लड़की अगवा। तो अगले हमने गाड़ी में देखा कि एक लड़की है जो बड़ी चीखो पुकार कर रही है, और उसका जो है वो कुछ गुंडों ने उसे दबाया हुआ है। तो हमने गाड़ी पीछे लगा ली, तेज रफ्तार कर ली। तो जब हमने जाके गाड़ी अपनी आगे गाड़ी उनके लगाई, तो वो लड़की समेत सारे निकल के बाहर तो हंसना शुरू हो गए। हम बड़े हैरान हुए, तो उन्होंने पीछे इशारा किया, तो पीछे एक जीप के ऊपर कैमरे फिट थे और फिल्म की शूटिंग हो रही थी। कोई और वाकया जिसमें सचमुच अगवा हो रही हो, आपने फिर शूटिंग की समझी हो? बड़ी हसरत। शाहजमान साहब, खुराक, पानी और हवा के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर आप 1 मिनट नहीं रह सकते? अपने बेटे के बगैर। अच्छा बहुत सही है। अच्छा पराचा साहब, घर का बजट जो है किसके हाथ में, आपके या बेगम साहिबा के? बेगम साहिबा के। जमात इस्लामी वालों के घरों में ना जी बेगमात बढ़िया आजाद होती है। घर में हुक्मरानी भी उन्हीं की है या आपकी है? जी हुक्मरानी तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दी है कि औरत घर की मलका है। हर घर की कहानी है। एक बादशाह ने 500 शादीशुदा जोड़ों की दावत की।
اور بعد میں کہا جو بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ دائیں طرف آ جائیں اور جو نہیں ڈرتے وہ بائیں طرف آ جائیں. 499 دائیں طرف آ گئے جو ڈرتے تھے اور ایک ادھر کھڑا رہا. بادشاہ نے خوب کلیئر کیا اور کہا بھائی آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ ماشاءاللہ اس نے کہا ڈر ڈر کا تو مجھے نہیں پتا، میری بیوی نے کہا تھا یہاں سے ہلے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں. جواد صاحب، یہ جو سنگرز ہوتے ہیں یہ ہنسنے اور رونے کے لیے بھی کوئی سروں کا خیال رکھتے ہیں؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، بڑا ڈفرینس آپ نے. تو اس میں سر لگتے بھی ہیں یا نہیں لگتے؟ کس میں، رونے اور ہنسنے میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے اور جتنا سنگر ہے. آپ اگر رو گے تو کیسے رو گے؟ میں رونا نہیں چاہتا، ہنسنے کے موڈ میں آیا ہوں. ایسے بتاؤ سور چکے تسی بھائی جدو تسی روندے ہوگے تہاڈے تھلے بہ کے تے بچے نہ ہوندے ہونے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ زمان جواد ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی دیجیے. ملتانی کنگڑ پوا دے پے پورے کرتے پاتے کچھ ہلے تک نہیں ہویا تیرے جیڑے سی ارادے پھر کردا روی تو پورے تیرے دل وچ جو منصوبے اور سب تو پہلے اپنی قوم نو روٹی رچ کے کھوا دے او ڈالر سستا کرن دا وعدہ کردا روی تو پورا کوئی سائنس لڑا کے تو تھوڑا پٹرول ہی سستا کرا دے. ہاں کس کے ساتھ گانا چاہیں گے، نصیب لال یا حدیقہ کیانی؟ نصیب لال. نصیب لال. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، شاہ زمان جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے ہم پراچا صاحب کے ساتھ کھیلتے ہیں 2020 سر. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، کوئک آنسرز جتنی جلدی آپ دے سکیں. شروع کریں سر. جی بسم اللہ کرتے ہیں. فیوریٹ لیڈر منور حسین یا قاضی حسین احمد؟ ویسے تو ان دونوں کے درمیان مقابلہ نہ کرایا جائے، لیکن قاضی حسین احمد صاحب زیادہ جماعت کے لوگوں میں زیادہ پاپولر. میڈیا کا رول او پازیٹو یا بی نیگیٹو؟ او پازیٹو. او پازیٹو. سیاست ایک نشہ ہے یا پیشہ ہے؟ میرے خیال بعض کے لیے نشہ ہے اور بعض کے لیے پیشہ ہے، تو ہمارے لیے عبادت ہے. پاکستان کو خطرہ ہے باہر سے یا اندر والوں سے؟ ان اندر والوں سے کہ جو باہر والوں کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں. ہماری عوام کو سوٹ کرتی ہے آمریت یا جمہوریت؟ ہمارے یہاں تو جمہوریت بھی آمریت والی ہوتی ہے، کوئی وردی والی آمریت ہوتی ہے، کوئی بے دردی والی آمریت ہوتی ہے. شادی کی سالگرہ پر بیگم کو تحفے دیتے ہیں یا بھابھی سے تحفے لیتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں. تو میری مذاکراتی ٹیم پراچا صاحب کو کیا نمبر دے گی؟ ٹوٹل نمبر جی پورا سکور ووٹ ہی تہاڈا. ڈر گیا تو ڈر. جی میری طرف سے تو 97 ہے. 2020 شروع کرتے ہیں شاہ زمان اور جواد کے ساتھ. سر شروع کریں. جی ضرور. تو پہلے شاہ زمان سے ہلکا پھلکا کھیلنا ہے. جی زندگی کی اننگ کھیلنی چاہیے ٹیسٹ میچ کی طرح یا 2020 کی طرح؟ 2020 کی طرح. فیوریٹ سنگر عاطف اسلم یا ابرار؟ عاطف. کس کے ساتھ گانا چاہیں گے، نصیب لال یا حدیقہ کیانی؟ نصیب لال. نصیب لال. فیوریٹ فوڈ کریلے گوشت یا پیزا؟ پیزا. تو آ گیا تائی لگے. فیوریٹ گفٹ پرفیوم یا کیش؟ اگر ملے تو کیش. کس سے ڈر لگتا ہے، بروس لی کے کراٹے سے یا اپنی گھر والی سے؟ گھر والی سے. اللہ سرکار ہے ایوینی صاحب ہے. نہ ہوں گے نہ پکڑے جائیں گے. جواد آپ کے ساتھ شروع کریں. جی جی پلیز. کیا ضروری ہے، گانا یا کمانا؟ آئی تھنک دونوں. فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں، ڈانس یا رومانس؟
सच बोलना, बड़ा इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। With naughty people we try to be naughty. रोमांस भी कर लेते हैं और भी कुछ चीजें कर लेते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क को कौन चला रहा है, सियासतदान या फरिश्ते? सही बताऊं तो अल्लाह ही चला रहा है मुल्क को, वरना निजाम तो कोई इतना सही नहीं है। एक शेर है जो बसों पे लिखा हुआ होता है। जी जी सर। कि इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे ही बस चल रही है। हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोटे या लुटेरे? लोटे ही लुटेरे हैं। नंबर बताइए। मेरा ख्याल है कि इनके नंबर सिर्फ 93 बने हैं सर। जवाद भाई के नंबर जो हैं वो तो आएंगे 98। और भाईजान के थोड़े कम आ रहे हैं। शाह जमान ने मरवा दिया जवाद को। नहीं असल चुना जी वाला दे नंबर कट्टे ने ये तो खैर अपनी मजाक था हमारा, जो कि हम अपने मेहमानों से कर लेते हैं, और उनकी ग्रेटनेस है कि वो जब हमारे साथ मौजूद होते हैं वो माइंड भी नहीं करते, और इसी तरह हमारी इस मुज़ाकराती फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, छुड़ा पाऊं ना जान बिजली के बिल से, न बिजली ही पूरी ना ही गैस पूरी, बिल आखिर निकल आए मजदूर बिल से। जो महंगा हुआ तो वजन भी हुआ कम, लो महरूम अब के हुआ नान दिल से। काफी तवील अब ये गैप हुआ रे, हर काम पे कोई मिसहैप हुआ रे, कोई लुटा कोई किडनैप हुआ रे।